Hello everyone, welcome to Vani Academy. So today we are going to start our next topic, that is agrarian society and the Mughal Empire. It is part 1. So as you all know that Vani ma'am has started her foundation course on Indian polity on Unacademy platform. So if you want to take plus subscription, you can put her referral code, that is Vani Mehra, to avail 10% discount, as well as you will get her personal mentorship throughout your preparation. For more information, you can see the description box given below. So, firstly, we will read about the agrarian society and the Mughal Empire. So, the 85% of population was villagers. Those peoples were villagers. 85% population. ओके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो होता था पीजेंट्स एंड लैंडेड एलिट्स दोनों मतलब दोनों लोग जो हैं लैंडेड एलिट्स और पीजेंट्स ये दोनों जन एग्रीकल्चर वर्क परफॉर्म करते थे और ये लोग क्लेम करते थे राइट्स पीजेंट क्लेम करते थे राइट्स शेयर में जो प्रोडक्शन होता था उसके शेयर में ठीक है दे क्रिएटेड रिलेशनशिप ऑफ कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्पिटिशन इन दोनों के बीच कैसे कैसे रिलेशनशिप रहते थे कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन के और जो रिलेशनशिप होता था वही बनाता था रूरल सोसाइटी को एजेंट्स ऑफ द स्टेट वर रेवेन्यू एक्सेसर्स कलेक्टर्स रिकॉर्ड कीपर्स sought to control rural societies. We will read about the peasants and the agriculture production. So basic unit of agriculture society was the village, okay, where inhabited the peasant society. So they performed seasonal tasks such as tilling the soil, sowing seeds, harvesting crops, and peasants also contributed their labor to the production of agro-based goods such as sugar and oil. Several areas such as the hilly areas were not cultivated. Hilly areas, terrain areas, those areas were not cultivated. Forest areas were the substantial proportion of territory. And looking for sources. Now, the major sources for agrarian history were the chronicles and the documents from the Mughal courts. So one of the chronicle was Ain-e-Akbari, which was written by Abul Fazl, and here he recorded the arrangement made by the state to ensure cultivation to enable collection of the revenue by the state agencies. So in Ain-e-Akbari, he presents a vision of Akbar's empire where social harmony was provided by a strong ruling class, and it tells about the peasants who remain a view from the top. Other sources were detailed revenue records during the time period of 18th and 17th century, revenue records of Gujarat, Maharashtra and Rajasthan. So these some records of East India Company were also there, which have very useful information and useful description about the agrarian relationship in Eastern India. So the sources were records instances of conflicts between peasants and zamindars and the state. This give insight into peasants' perception of and their expectation of fairness from the state. मीन्स जो पीजेंट्स होते थे उनको एक आशा रहती थी कि उन्हें न्याय मिलेगा और फेयर डिसीजन होगा उनके साथ. अब पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स उनके बारे में पढ़ते हैं. तो द टर्म यूज टू डिनोट पीजेंट्स वर रायात और प्लूरल फॉर्म राया और मुजारियंस. Other terms were also used such as Kisan and Asami. Sources of 17th century were there were two lands of peasants. One Khudkasht and Pahikasht. Khudkasht was the resident of were called the resident of the village in which they held their land, and Pahikasht were the second type of peasants who were non-resident cultivator who belonged to the other villages but cultivated lands elsewhere on the contractual basis. So now we come to our next topic, that is irrigation and technology. So the constant expansion of irrigation result in the mobility of peasants and purpose was to feed people. Agriculture का purpose क्या होता है? लोगों को feed करने का. तो जो constant expansion होने लगा उससे क्या होने लगा? Abundance of land होने लगी, availability of labor होने लगी. उसी वजह से मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स जो होते थे वो क्या थे? बेसिक स्टेपल, जैसे कि राइस, वीट, मिलेट, ये बेसिक क्रॉप्स होते थे. और मानसून क्या था? बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. आज भी हम देखते हैं खेती ज़्यादातर मानसून पे डिपेंड है. वो दूसरी बात है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे पास अब नई आ गई हैं. सो हेयर ऑल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन डेवलप्ड फॉर द क्रॉप्स विच रिक्वायर्ड एडिशनल वाटर, एंड इरिगेशन सिस्टम रिसीव्ड स्टेट सपोर्ट एज वेल.
Though agriculture was labor intensive, but peasants did use the technologies that often harnessed cattle energy. Now we will read about an abundance of crops. So agriculture was carried on in two major seasonal cycles. One was Kharif, that is autumn, and second was Rabi, that is spring. So most regions except terrains that were most arid or inhospitable produced minimum 2 crops a year. 2 फसल होती थी वहाँ पे ऐसी जगहों पे, और some regions जहाँ पे continuous water supply होती थी वहाँ पे 3 types of crops भी grown होते थे. तो this ensures an enormous variety of produce. कुछ यही चीज़ हमने पढ़ा. अब देखते हैं. Mughal state also encouraged peasants to produce Ginny Kalim. See, okay, perfect crops such as cotton and sugar. The cash crop also included various sort of oilseeds and lentils. This shows how subsistence and commercial production was closely intertwined in an average peasant's holding. So during the time period of 17th century, different new crops came from the different part of the world, reached Indian subcontinent, such as maize from Africa and Spain, and vegetables जैसे कि tomatoes, potatoes, chilies, fruits like pineapple and papaya, ये कहाँ से introduced हुए? Foreign countries से, दूसरी जगह से, subcontinents के. ओके, अब हम पढ़ेंगे द विलेज community के बारे में. तो agriculture production involved the intense participation of the initiative of the peasantry. Peasants held their land in individual ownership. They also belonged to the collective village community, having 3 constituents. What were the 3 constituents of the collective village community? The cultivator, the panchayat, and the village headman. That is मुकद्दम और मंडल, जिनको विलेज का हेडमैन को इन 2 नाम से बुलाते थे. अब कास्ट एंड द रूरल मेलियो. तो कल्टिवेटर जो होते थे वो हाईली हेट्रोजीनियस ग्रुप होते थे, जिसमें बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ होती थी कास्ट को लेके, जेंडर को लेके. तो कुछ लोग जो होते थे मैनी वर्क एज अ मीनियल्स और एग्रीकल्चरल लेबर सच एस मजूर या मजदूर जिनको हम कहते हैं, और बहुत सारे थे उनमें से जो लैंड टिल करते थे. और जो लार्ज सेक्शन था विलेज पॉपुलेशन का, वो क्या था, उनके पास लीस्ट रिसोर्सेज होते थे, और वो बहुत सारे मतलब उनके साथ भेदभाव होते थे कास्ट को लेके. ओके, तो Muslim communities, menials like the Halal Koran scavengers, were housed outside the boundary of the village, and Mallazadas, literally son of the boatman in Bihar, were comparable to slaves. इनको compare करते थे slaves से. किसको? मल्लाजादास को, जिनको जो क्या होते थे, son of boatman होते थे. There was a direct correlation between caste, poverty and social status. मैंने बताया था पहले कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस होते थे कास्ट को लेके और जेंडर को लेके, और वही जो कि हम पढ़ते हैं मिडीवल इंडिया में बहुत बड़ा फैक्टर है. जो डिसीजन होते थे वो बाइंडिंग होते थे लोगों पर स्टेट के हेडमैन के, जो डिसीजन होते थे जिनको मुकद्दम या मंडल भी बोलते थे. और ये क्या करते थे, अपना ऑफिस हेल्ड करते थे कब तक? तब तक ये लोगों का कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हेडमैन को लोग ही चुनते थे. ये सरपंच, ये सब जो होते हैं हेडमैन, मुखिया. The chief function was to supervise the preparation of the village accounts, assisted by the accountant और पटवारी. जो विलेज का अकाउंटेंट होता था वो पटवारी कहते थे. आज भी हम जानते हैं पटवारी क्या होते हैं. जो पंचायत होती थी derived its fund, वो फंड कहाँ से पाती थी? कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल टू अ कॉमन फाइनेंशियल पूल से. और पंचायत also had to ensure that caste boundaries among the various communities inhabiting the village were upheld. सो ईच कास्ट और जाति जो थी उनकी अपनी अलग जाति पंचायत होती थी. तो विलेज पंचायत जो होती थी वो एक कोर्ट ऑफ अपील होती थी. लोग के साथ जब इनजस्टिस होता था तो वो जस्टिस पाने के लिए विलेज पंचायत ही जाते थे. तो डिसीजंस जो होते थे कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड होते थे, स्टेटमैन और ज़मींदार, पीजेंट्स, इन सब के बीच में, लो कास्ट पीजेंट्स के बीच में हो गया अगर कोई चीज़. तो इन केस ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड, अगर कोई एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड कर रहा है तो पंचायत कॉम्प्रोमाइज़ सजेस्ट करती थी. अगर लोग उससे खुश नहीं होते थे तो पीजेंट विलेज को डेजर्टेड कर देते थे और वहाँ से चले जाते थे. ठीक है. अब लिटिल रिपब्लिक. सो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ विलेजेस एज अ लिटिल रिपब्लिक मेड ऑफ फ्रेटर्नल पार्टनर शेयरिंग रिसोर्सेज एंड लेबर इन द कोरिलेटिव. उन्होंने इस विलेज को डिफाइन किया कि ऐसे ऐसे 19th सेंचुरी में विलेजेस होते थे. तो देयर वॉज इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ असेट. इंडिविजुअल ओनरशिप होती थी असेट की, साथ ही साथ बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ और इनइक्विटीज़ भी
फेस करना पड़ता था, जैसे जेंडर बेस पे, कास्ट बेस पे। ओके, सो ये जो ग्रुप्स होते थे पावरफुल इंडिविजुअल की, डिसाइड करते थे विलेज के अफेयर्स और एक्सप्लॉइट करते थे वीकर सेक्शन को और अपनी अथॉरिटी बताते थे जस्टिस पे, है ना, जस्टिस हम नियम करेंगे, हम न्याय करेंगे। तो जो कैश नेक्सस हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड थ्रू ट्रेड बिटवीन विलेज एंड टाउन। आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट रिसीव्ड देयर एडवांसेस ऑन वेजेस इन कैश। अब पढ़ते हैं वुमेन इन एग्रारियन सोसाइटी, वुमेन की क्या कंडीशन थी। सो द प्रोडक्शन प्रोसेस जो होती थी उसमें मेन एंड वुमेन दोनों इन्वॉल्व रहते थे। तो स्पेसिफाइड रोल होता था, जैसे कि वुमेन का होता था सो करने का, वीडिंग करने का, थ्रेशिंग करने का और विनोइंग करने का हार्वेस्ट में, और मैन क्या करते थे, टिल करते थे, प्लो से जोतते थे खेतों को। सो बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटायर हाउस a gendered segregation between home and world was not possible. In the in this context, biases related to women biological functions continued. Artisanal tasks जो होती थी, spinning, yarn, shifting, kneading clay and pottery and एम्ब्रॉयड्री, ये सब जो वर्क थे डिपेंडेंट होते थे फीमेल लेबर्स पे। और मोर कमर्शलाइज प्रोडक्ट्स जो होते थे वो ग्रेटर डिमांड में होते थे वुमेन लेबर की ताकि वो उनको प्रोड्यूस करें। वुमेन जो होती थी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती थी एग्रेरियन यानी एग्रीकल्चर सोसाइटी का। साथ ही साथ उन्हें एक चाइल्ड बियरर भी माना जाता था सोसाइटी में, ठीक है। और हाउस जो होते थे यूजुअली मेल से हेडेड होते थे, मतलब जो हाउस का हेड होता था वो यूजुअली मेल होता था। अब फॉरेस्ट एंड ट्राइब की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम कल्टिवेटेड प्रोविंसेस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ह्यूज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, ओके, वहाँ जंगल्स होते थे, ठीक है। और जो लोग उस जंगल में रहते थे उन्हें क्या बोलते थे, जंगली बोलते थे। जंगली का मतलब ये नहीं यहाँ पे लिखा है कि वो अनसिविलाइज्ड हैं, इस जंगली का मतलब ये जो डिपेंडेंट है जंगल पे अपनी लाइवलीहुड के लिए, जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जो निर्भर है, हंटिंग पे जो निर्भर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे जो निर्भर है, उन्हें यहाँ पे जंगली बोला गया है, ना कि अनसिविलाइज पीपल के लिए। सो ये जो एक्टिविटीज़ थी लार्जली सीजन स्पेसिफिक होती थी, और स्टेट के लिए फॉरेस्ट जो है वो एक सबवर्सिव प्लेस था, अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज, जिसे छुपने के लिए, है ना। और वहाँ पे बहुत सारे हाथी वगैरह भी मिलते थे युद्ध वगैरह में जब जाता था कोई, तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इन रोड्स इनटू फॉरेस्ट। एक्सटर्नल फोर्सेस एंटर्ड द फॉरेस्ट इन डिफरेंट वेज, ओके। द पेशकश यानी गिफ्ट टाइप का जिसको हम कहते हैं, मुगल एम्पायर के समय पे ये वर्ड यूज़ होता था। लीव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट पीपल ऑफन इंक्लूडेड अ सप्लाई ऑफ एलिफेंट बिकॉज द एलिफेंट व नीडेड फॉर आर्मी, मैंने बताया था जैसे कि अभी। मुगल आइडियोलॉजी क्या थी, हंट सिम्बलाइजेज द ओवरवेलमिंग कंसर्न ऑफ द स्टेट टू एंश्योर जस्टिस टू ऑल इट्स सब्जेक्ट्स, एंड रेगुलर हंटिंग एक्सपेंडिचर्स जो होते थे एनेबल करते थे एम्परर को टू ट्रैवल अक्रॉस द एक्सटेंसिव टेरिटरीज ऑफ हिज एम्पायर एंड पर्सनली अटेंड टू ग्रीवियांसेस ऑफ इट्स इनहेबिटेंट। स्प्रेड ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर ऑल्सो अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ दोज हु लिव्ड इन फॉरेस्ट, ठीक है। अब कमर्शियल एग्रीकल्चर हो गया तो उनकी लाइफ भी अफेक्ट हुई जो फॉरेस्ट में रहते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस हनी, गम, ओके, ये सारी जो चीज़ें थी, लाख, वर इन ग्रेट डिमांड, ये ग्रेट डिमांड में थी। तो एलिफेंट्स होते थे कैप्चर किए जाते थे और बेचे जाते थे। और ट्रेड कैसे इन्वॉल्व होता था, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ बाय बार्टर सिस्टम, कि आप हमको ये सामान दो, हम आपको गेहूँ देते हैं बदले में। तो ट्रेड ऐसे होता था बार्टर सिस्टम में। कुछ ट्राइब्स होते थे इंगेज होते थे ओवरलैंड ट्रेड में, और ट्राइब ऑल्सो हैड चीफ्टेंस, या फिर जो उनके सरदार होते थे वो भी प्रेजेंट रहते थे, ठीक है। ज़्यादातर जो ट्राइब चीफ होते थे वो ज़मींदार और राजा भी बन जाया करते थे समय के साथ साथ, ठीक है। और कभी कभी आर्मी बिल्ड करने के लिए ये रिक्रूट करते थे पीपल को अपने ही ग्रुप से, ठीक है। राजा बन जाया करते थे, ज़मींदार बन जाया करते थे। असम में जो अहोम किंग्स थे उनके हैड देयर पाइक पीपल हु वर ऑब्लिग्ड टू रेंडर मिलिट्री सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर लैंड। तो न्यू कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ, बिगिन टू पेनिट्रेट इनटू फॉरेस्ट जोन। अब जो नया कल्चरल इन्फ्लुएंस था वो फॉरेस्ट तक भी जाने लगा, क्योंकि वो कंट्री साइड में धीरे धीरे फैलने लगी चीज़ें। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस जो सूफी सेंट होते थे, पीर होते थे, ये प्ले करते थे एक इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्लो एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम अमंग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ इमर्जिंग इन न्यूली कोलोनाइज्ड प्लेसेस। अब बात करते हैं ज़मींदार की। तो ये लैंडेड प्रोप्रीटियर्स होते थे, इन्जॉय करते थे सर्टेन सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस को बाय वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर स्टेटस इन रूरल सोसाइटी। इनका सुपीरियर स्टेटस होता था
ये क्या परफॉर्म करते थे, सर्टेन सर्विसेज को, जिसको कहते थे खिदमत, स्टेट के लिए खिदमत में, आपकी खिदमत में पेश हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, वही चीज़। ये हेल्ड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड, टर्म्स मिल्कियत, उनकी एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड होती थी जिसे मिल्कियत बोलते थे। सो दिस वॉज कल्टिवेटेड, मिल्कियत वॉज कल्टिवेटेड फॉर द प्राइवेट यूज़ ऑफ जमींदार, इनकी प्राइवेट ये लैंड होती थी, हम मान सकते हैं, ठीक है। अब कलेक्ट करते थे कभी कभी रेवेन्यू भी स्टेट के बिहाफ में, और दे वर कंपेंसेटेड फॉर दिस, और उन्हें कंपेंसेट किया जाता था इस चीज़ के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन और इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। कंट्रोल ओवर मिलिट्री सोर्सेज एंड अनदर सोर्सेज ऑफ पावर, मोस्ट जमींदार्स हैड फोर्ट्रेस, उनके किले भी होते थे, आर्म्ड कंटीजेंट्स भी होते थे। अबुल फजल के अकाउंट में ये दिया हुआ है, तो अपर क्लास ब्राह्मण्स और राजपूत कंबाइन had already established control over rural societies and the disposition of weaker people by a powerful military chieftain was quite often a way of expanding a ज़मींदारी एक्सपेंड करने के क्या क्या तरीके होते थे, यानी लोगों के क्या अपर क्लास के जो ब्राह्मण होते थे और राजपूत होते थे कैसे कंबाइन करते थे, अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करते थे रूरल सोसाइटी में, ठीक है। The processes of zamindari consolidation involved colonization of new land by transfer of rights, by order of the state, and by purchase. So these permitted people belonging to the relatively low caste to enter rank of zamindar, as zamindar were bought and zamindaris were bought and sold. Okay. So zamindars also helped in setting cultivators by providing them with the means of cultivation, including cash loans. प्रोसेस ऑफ मोनेटाइजेशन एसेलरेटेड इन द कंट्री साइड, अब मोनेटाइजेशन बढ़ने लगा, पैसे का जो वो लेन देन ये सब चीज़ें बढ़ने लगी कंट्री साइड पे। कंट्री साइड मीन्स पेस्टोरल इलाका, जो गांव का इलाका होता है। ज़मींदार्स वर एक्सप्लॉटेटिव क्लास मानी गई, बट उनके जो रिलेशनशिप होते थे पीजेंट्री से कभी कभी रेसिप्रोसिटी के होते थे, ओके, पैटर्नलिज्म के होते थे, पैट्रनेज के भी होते थे, जो भक्ति सेन से डिड नॉट पोर्ट्रे द जमींदार्स एज एक्सप्लॉटर्स और ऑप्रेसर्स ऑफ द पीजेंट्री। In large number of agrarian uprisings, zamindar often received the support of the peasantry in their own struggles against the state. अब इस पार्ट में हमें ये पता चलता है कि जमींदार और पीजेंट्स के बीच में क्या रिलेशंस रहे, कैसे उनके जो फंक्शन थे वो कंडक्ट होते थे। इसी के साथ अब अपना ये सेशन एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वान अकेडमी। वी आर हियर टू एम्पावर, इन्वॉल्व एंड encourage you, and we will come with our next part. Thank you and have a nice day.